Assalamu alaikum to all of you. Myself Taha Hussain, student of BS Zoology, 6th semester morning from Division of Science and Technology, Township Campus Lahore. Today we are going to discuss about the Australian region and the contains introduction, history, statistics, sub-region, countries, fauna, endemic species, extinct species, affinities, climate, threats, and important. Introduction: the Australian realm is a biogeographic realm that is coincident but not synonymous by some definition with the geographical region of Australasia, covering an area of 2.96 million square miles, including Australia, New Zealand, Guinea, Papua, Tasmania, Moluccas, and neighboring Iceland, Adamborg, and Pacific Island groups, including the Bismarck Archipelago, Vanuatu, the Solomon Islands, and the New Caledonia. The region has no land connection with any other region, surrounded by ocean on the east, west, north and south. चारों तरफ से पानी ने घेरा हुआ है ऑस्ट्रेलियन रीजन। ये आप देख सकते हैं, इसका मैप है कि चारों तरफ से पानी ने घेरा हुआ है। History of Australian region. In an 1858 paper of the Proceeding of the Linnean Society, British zoologist Philip Skelter first identified 6 terrestrial geographical realm of the world. वो कौन कौन से थे? पैलार्कटिक, एथोपियन जिसको एफ्रोट्रॉपिक भी कहते हैं, इंडियन जिसको या एंडोमालाइन भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलेशियन, नियोआर्कटिक एंड नियोट्रॉपिकल. द 6 इंडिकेटेड जनरल ग्रुपिंग ऑफ fauna based on shared geography and large scale geographical barriers to migrate. Alfred Wallace adopted a Skelter scheme for his book. कौन सी किताब थी? The Geographical Distribution of Animals, published in 1876. In the same scheme, the persist today, which related to minor revision and the addition of 2 more realms, oceanic and the arctic realm. ये 2 realms उसने ऐड किए थे, उन 6 के अलावा ये 2 भी ऐड किए थे अपनी बुक. Development of Australian biogeographical regionalization since 1858 has been driven by colonial 19th century exploration and by the late 20th century biodiversity crisis. The interweaving reducing existing large-scale regionalization into smaller taxons, specific areas of vegetation, and regionalization और endemism है. ये आप देख सकते हैं कि वो जो जोग्राफिकल 6 जो रियलम्स हैं वो उनका मैप है यहाँ. नियोआर्कटिक, नियोट्रॉपिकल, पैलियार्कटिक, इथोपियन, ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलियन. ये मैं उसका मैप है कि देखिए कुछ बैरियर्स. हाँ, जो बैरियर्स हैं वो हाई माउंटेन्स हो सकते हैं, डेजर्ट्स हो सकते हैं और ओशियन. ये बैरियर्स जो है ना एक रीजन को दूसरे रीजन से सेपरेट कर देता है. स्टैटिस्टिक्स अब देखें कंट्रीज़ कितने. ऑस्ट्रेलियन रीजन में 7 कंट्रीज इंक्लूड हैं. एंडेमिक वर्टिब्रेट्स की बात करें तो 3000 है. परसेंटेज ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ 93, नेटिव स्पीशीज़ 1 मिलियन है. एंडेमिक प्लांट स्पीशीज़ 18,000 है. फर्स्ट स्पीशी जो डिस्क्राइब हुई थी वो 1758 में हुई थी. तो लास्ट जो स्पीशी जो है अभी तक डिस्क्राइब हुई है वो 2019 के बाद अभी तक कोई स्पीशी जो है ना वहाँ जो है वो डिस्क्राइब नहीं हुई है. अब सब रीजन्स की बात करें. एस्ट्रेलो मालायान आर्चिपेलागो, मोलुकास, सोलोमन आइलैंड, न्यू गुनिया, ये इसमें ये एरियाज जो है इस सब रीजन में आते हैं. और इनका फाना की बात करें तो 130 फैमिलीज ऑफ वर्टिब्रेट्स हैं. बर्ड्स की बात करें तो क्राउन पिजन्स हैं, बर्ड ऑफ पैराडाइज हैं, हनी ईटर्स हैं, कुकूस है, बूअर बर्ड्स हैं और कैसोवेरीज हैं. देयर आर फ्लाई रिवर टर्टल्स हैं, फ्लाइंग फैलेंचर्स हैं एंड ट्री फ्रॉक्स हैं. और जो दूसरा सब रीजन है वो ऑस्ट्रेलियन है. ऑस्ट्रेलिया and Tasmania इसमें आते हैं. There are 98 families of vertebrates and the region is home of the monotremes and marsupials. Monotremes include short-nosed echidna, long-nosed echidna and duck-billed platypus. जो echidna और platypus हैं ये on the world में जो है ना egg-laying mammals में शामिल होते हैं. Marsupial include marsupial red kangaroos, Tasmanian devil, koala, the horny possum, marsupial mole and rabbit-eater bandicoots. तस्मानियन वुल्फ जिसे थैलीसीनस साइनोसफेलस कहते हैं वो 1936 में यहाँ से एक्सटेंड हो गई इस रीजन से. दियर आर स्कब बर्ड्स, लैरी बर्ड्स, यूमूस एंड प्लेंटी ऑफ कोब्रास एंड स्नेल टेल एम्फीबियंस आर एब्सेंट. इस रीजन में एम्फीबियन टेल एम्फीबियन जो है ना वो एक्सटेंड है. पोलिनेशिया एंड द एडजॉइनिंग आइलैंड fauna is poor, containing only 53 families. Tooth-billed pigeon is unique to this
सब रीजन कौन सा, पोलिनेशिया। न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड, नॉरफॉक आइलैंड, ऑकलैंड एंड कैम्पबेल आइलैंड, ये एरियाज इसमें शामिल हैं। न्यूजीलैंड जो कि ऑस्ट्रेलियन रीजन का एक सब रीजन है। फाना इंक्लूड्स मोरिड बेयर्स, आउल पैरट, नेस्टर पैरट्स, किवी, स्फेनोडोन है एंड फ्रॉग। Flightless owls, parrot, केकोपो feeds on leaf, shoots, berries, fruit and मौसम। अब न्यूजीलैंड का जो है ना एक पैरट है जो कि कार्निवरस पैरट कहा जाता है। ये सिर्फ न्यूजीलैंड सब रीजन में जो है बहुत मशहूर स्पेसिफिक है। कई ये जिसे कहते हैं वाज वेजिटेरियन अर्ली, but after introduction of sheep in New Zealand has learned to cut sheep skin and feed on flesh, तो वो गोश्त पे भी जो है ना वो फीड करने लगा। अगर कंट्रीज़ की बात करें तो मैंने कहा जैसे 7 कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग आइसलैंड अलग हैं, लेकिन 7 कंट्रीज़ भी इसमें शामिल है। कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कैलिडोनिया है, इंडोनेशिया। हाँ, इसमें पूरी कंट्रीज़ भी हैं और कुछ कंट्रीज़ के सिर्फ छोटे से पार्ट्स भी आते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया का गुनिया आ रहा है, न्यू गुनिया और पपुआ। ये इंडोनेशिया के कुछ पार्ट्स आ रहे हैं। पूरा इंडोनेशिया जो है ना वेस्टर्न रीजन में शामिल नहीं है। बाकी कुछ से फिर दूसरे रीजन्स में शामिल होते हैं। तस्मानिया है मलुका से। आइसलैंड ऑफ लोम्बाक, Pacific Island group including the Bismarck archipelago, Vanu, uh, Vanuatu and Solomon Island, न्यू कैलिडोनिया। ये सारे जो आइसलैंड हैं इनके अलावा 7 कंट्रीज़ और ये आइलैंड सारे वेस्टर्न रीजन में शामिल हैं। कंट्रीज एंड आइसलैंड दिस रियल बिलोंग टू डिफरेंट कॉन्टिनेंट, जैसे ओरिना है, मेलेनेशिया है, माइक्रोनेशिया है, पोलिनेशिया है, और एशिया की बात करें तो साउथ ईस्टर्न एशिया। फ़ौना की बात करें तो सबसे पहले हम मैमल्स की बात करेंगे। 8 ऑफ द 9 फैमिलीज ऑफ मार्सुपियल्स आर यूनिक टू द ऑस्ट्रेलियन रीजन। There are 52 genera of 6 families of marsupial that are unique and are not found in the neotropical region. Marsupials show parallelism with their counterpart placentals in other part of the world in their evolutionary modification. Placental mammals that were introduced by men, or some of them immigrated themselves, including rodents and bears, rabbit, fox, rat, mice, dingo dogs, cats, pigs, and morid mice. Monotremes are represented by Ornithorhynchus and Echidna. ये उनका डायग्राम है, देखें तो ये डॉग माइस वगैरह जो अभी मैंने नाम लिए थे उनका। Birds की बात करें, there are 58 families of birds, out of which 44 are widely distributed. Species having wide range are trogons है जी, hogs हैं, kingfishers हैं, cuckoos, parrots and pigeons, shared with oriental and frogmouths, wood swallow, flower peckers and megapods हैं. There are 10 families of endemic birds, which include cassowary, emu, kiwi, ladybird, bowerbirds, honeysuckers, mata paradise, megapods, and kookaburra are laughing geckos that feed on lizards and snakes. But not present are pheasants, इसमें मौजूद नहीं होते हैं इस रीजन में। फिंचेस नहीं हैं, बारबेट्स नहीं हैं, और वुड पैकर्स जो है ना वो वेस्टर्न रीजन में नहीं पाए जाते हैं। बाकी ये जो डायग्राम आपको देख रहे हैं ये तमाम बर्ड्स जो है ना वो वेस्टर्न रीजन में मौजूद हैं। रेप्टाइल्स की बात करें, देयर आर पाइथन्स जो कि बाइटिंग स्नैक्स है, एलेपिड कोरल स्नैक्स हैं, जेकूस जो है ना वो लिजर्ड की टाइप है, स्किंग्स हैं, एगमिट्स लिजर्ड हैं, स्केल फुटेड लिजर्ड हैं, पाइकोपास जिसे कहते हैं, कोमोडो ड्रैगन, वेरानीडिया ये है, क्रोकोडाइल्स हैं, टर्टल्स, ये रेप्टाइल की टाइप्स हैं जो कि वेस्टर्न रीजन में मौजूद है। Sheller turtle and snake-necked turtle possess strikingly long neck, इनका होता है। Sphenodon ponoctatus is found exclusively in the New Zealand, जो कि एक सब रीजन है ऑस्ट्रेलियन रीजन का। एम्फीबियंस की बात करें, देयर आर नो टेल एम्फीबियन, जैसे कि पहले बता चुका हूँ। कॉमन टोड्स आर एब्सेंट एंड फ्रॉग्स आर फ्यू, जैसे ग्रीन फ्रॉग्स है, ट्री फ्रॉग्स बिलोंग टू द फैमिली Hylidae, which is also found in the New World and Palearctic, but absent in African and Oriental region में ये मौजूद नहीं होते हैं। The Australian green frog secretes mosquito repellent, जो है ना कंपाउंड सेक्रेट करता है फ्रॉम देयर स्किन ग्लैंड्स, जो कि मॉस्किटोज़ को उससे दूर रखते हैं। दी ऑस्ट्रेलियन फ्रॉग्स जैसे रियोबेट्रेकस साइलस से, रियोबेट्रेकस वेटिलिनस से कैरी टेडपोल इन दियर स्टोमक, वो जो टेडपोल्स उनको अपना स्टोमक में कैरी करते हैं। सब स्पीशीज ऑफ फ्रॉग आर एडाप्टेड टू लाइव इन डेजर्ट, जो है ना वो सहरा में रहने के आदी हैं। कैसे कौन कौन से? नोटाडीन है, नियोबैट्रेकस है एंड हेलियोपोरस है।
ये कुछ रेप्टाइल्स भी हैं और इसमें फ्रॉग जो एम्फीबियंस हैं वो डायग्राम दिखाएं यहाँ। फाना फिशेस की बात करें तो फ्रेश वाटर फिशेस आर रेयर एंड बिलोंग टू द फैमिली ओस्टियोग्लोसिडाई है, इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। और फ्रेश वाटर फिशेस की तादाद अच्छी खासी कम है वहाँ। लंग फिश की बात करें तो रिस्ट्रिक्टेड टू दी बोनेट एंड मर रिवर इन क्वींसलैंड है। fauna of this region is poor in freshwater fishes, amphibians and reptiles. इंडेमिक स्पीसी की बात करें तो सम 83% ऑफ मैमल्स हैं, 89% ऑफ रेप्टाइल्स हैं, 90% ऑफ फिश इंसेक्ट्स एंड 93% ऑफ एम्फीबियंस दैट इनहैबिट द कॉन्टिनेंट आर एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया। ये कुछ इंडेमिक स्पीसीज की मैंने शॉर्ट लिस्ट बनाई है। प्लेटिपस है, एकिडनास है, डिंगो जो कि वाइल्ड डॉग है, ड्यूगोंग है, रेड कैंगरू से, स्कब बर्ड्स है, लेरी बर्ड्स हैं, यूमू है, प्लेटिपस हैं, पेरेंटाइन है, थ्रोनी डेवल है, इंडियन टाइपन है, जावन रूजा है, ऑस्ट्रेलियन लंग फिश है, लाफिंग कोबूरा है। अच्छा क्लाइमेट, अगर इस रीजन के क्लाइमेट की बात करते हैं तो पार्टली ट्रॉपिकल एंड पार्टली टेम्परेट है। New Guinea is tropical and is mostly covered with rainforest. The northern part of the Australia is tropical, but most of the interior is arid, जो है ना खुश्क इलाके हैं, deserts हैं। Northern part of the Australia hot and humid in summer and quite warm and dry in winter. Southern part are cooler with mild summer and cold sometimes rainy winter है। ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कवर्ड विद लश ग्रीन फॉरेस्ट है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो डिज़र्ट है एंड द ग्रासलैंड इन द मिडल, दरमियान में ग्रासलैंड है। तस्मानिया इज कोल्ड एंड टेम्परेट। ये टेम्परेचर या क्लाइमेट इन्हें फ्लक्चुएट इसलिए करता है क्योंकि जो है ना वो ऑस्ट्रेलियन रीजन में 7 से ज़्यादा कंट्री शामिल हैं, तो डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट जो है ना क्लाइमेट हो सकता है। ये आप देख सकते हैं तस्वीर, रेन फॉरेस्ट कैसा है, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल, टेम्परेट क्लाइमेट और ऑस्ट्रेलियन। उसकी एफिनिटीज़ की बात करें, देयर इज यूनिकनेस ऑफ मैमल्स एंड एफिनिटीज एग्जिस्ट विद ओरिएंटल एंड साउथ अमेरिकन फाना के साथ इनकी थोड़ी एफिनिटीज़ है। लेकिन यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया में जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं वो नेटिव जो एनिमल्स हैं वो बहुत यूनिक हैं बाकी एनिमल्स की निस्बत। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है ना सारी बाकी दुनिया के साथ इसका कोई ज़मीनी रास्ता नहीं है, बल्कि ये कटा हुआ है। और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसको चारों तरफ से पानी ने घेरा हुआ है, इसलिए एज इफ ड्रिफ्ट अवे फ्राम द साउदर्न पोर्ट रीजन से ड्रिफ्ट थे तो इसका क्लाइमेट जो है ना वार्मर और ड्रायर होता है। अच्छा मेगा फाउनल एक्सटेंशन, मेगा फाउनल एक्सटेंशन कहते हैं जो है ना लार्ज साइज एनिमल्स की जो है जिसका वेट 40 kg से ज़्यादा, इस तरह के एनिमल्स की एक्सटेंशन को कहते हैं मेगा फाउनल एक्सटेंशन। तो ये लार्ज स्पीसीज जो है ऑस्ट्रेलिया मेगा फाना कंप्राइज नंबर ऑफ लार्ज स्पीसीज हैं, लेकिन इसमें से जो है ना वो बहुत सारे जो है एक्सटेंड हो चुके हैं। कौन कौन से एक्सटेंड हो चुके हैं? मोनोट्रीम्स में, मार्सुपियल से, बार्ड से, रेप्टाइल से, इनमें कौन कौन से हो गए हैं? जेग्लोसिस हेक्टी है, एकिनाड है, जो प्लेटिपस हैं, कुछ डेप्रोटोडॉन हैं, ड्रोमोरेनिस सिटीरिटोनी है, वेरेनस प्राइसकस है, ये रेप्टाइल हैं। और ये जो है ना एक्सटेंड हो चुके हैं, और इनकी जो वजूहत एक्सटेंड होने की जो वजूहत है वो क्या है? ह्यूमन और क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। ये वो एनिमल्स हैं जो एक्सटेंड हो गए हैं। अगर इस रीजन की इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो ये रीजन है वो जो लार्ज बायोडाइवर्सिटी को जो है ना वो सपोर्ट करता है। और इसके जो फ्लोरा और अगर उनके फ़ौना की बात करें तो इसमें जो इसके जो फ़ौनस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ डेजर्ट भी हर तरह का जो है ना वो क्लाइमेट मौजूद है और हर तरह का जो है बायोम्स मौजूद हैं। तो डिफरेंट जो है ऑर्गेनिजम्स या फाना के लिए या एनिमल्स या प्लांट्स के लिए क्या करते हैं, यहाँ जो है ना वो हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। 93% स्पीशीज आर एंडेमिक इन दिस रीजन। और जो ज़्यादातर लार्ज नंबर ऑफ वर्टिब्रेट स्पीशीज बिलोंग टू दिस रियलम एंड ऑस्ट्रेलियन। और यहाँ के जो फ्लोरा फाना उनके लिए थ्रेट्स क्या हैं? हैबिटेट लॉस, इंट्रोड्यूस स्पीशी है, नई स्पीशी को इंट्रोड्यूस करते वो प्रे भी कर सकते हैं, डिजीज़, पोल्यूशन और एक्सप्लाइटेशन, फायर एंड फायर सप्रेशन। आपने देखा होगा कि कुछ अर्सा पहले ऑस्ट्रेलिया में के जंगलों में आग लगने की वजह से कितने जानवर मरे थे। नेटिव स्पीशी इंटरेक्शन, नेचुरल काज यानी मतलब फ्लड वगैरह भी आ सकते हैं। तो डिफरेंट, और ये जो ये रेफरेंसेस है जो जहाँ से मैंने बनाई। थैंक यू वेरी मच।